Assalamu alaikum. Welcome to the podcast Durand Files. I'm your host Hur Shafi, and today we'll be talking about the socio-cultural aspect of Khyber Pukhtunkhwa, which will include arts, culture, and folktales especially. We have with us Komal Salman, who is the founder of Folkloristan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है आपके Alhamdulillah. So आज हम बात करेंगे socio-cultural aspect of Khyber Pukhtunkhwa and Pashtun people in general. अब जब भी चार ही प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान में और उनके हर लोगों के अलग स्टीरियोटाइप्स हैं या उन लोगों को एक स्पेसिफिक स्टीरियोटाइप से या किसी चीज़ों से रिवेयर किया जाता है. पश्तून्स आर रिवेयर्ड एज वेरी प्रिंसिपल्ड पीपल. उनके बारे में ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिवली रिगार्ड में रखी जाती है कि बड़े प्रिंसिपल हो गए. उसके बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, पश्तून वली का कॉन्सेप्ट, एक टर्म. व्हाट इज़ दैट और उसको वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती है पश्तून कल्चर को? अच्छा तो Pashtun Wali essentially is a code of conduct. It's a set of principles the Pashtun people live by. And Pashtun Wali का जो concept था कि anybody who lives by the code of Pashtun Wali will be considered a Pashtun because again the Pashtuns are not a homogeneous group of people essentially. So, me as a Punjabi, मैं भी पख्तून वली अगर कॉन्सेप्ट पे डिटेल्स पे Well, वो पूरा होता पुराने ज़माने में होता था because the people were nomadic and there were a lot of interethnic marriages, etc., etc. तो obviously एक cultural assimilation का एक code of conduct. So what makes the term Pashtun wali? अच्छा, so it has a series of rules at its core, जिसमें loyalty है, friendship, you live with honor, you don't lie. Like there's this one very interesting thing कि अगर आपने मेरे ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाया है और मैंने एक दफ़ा आपको कह दिया है कि नहीं हुआ, you have to take my word for it. If it's your word against mine, बात ख़त्म. ठीक है, whoever is trying to prove their innocence, you have to give their word. Yes, and more important. if you ask me again and I refuse a second time, then asking the third time is not considered something nice at all. इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि there were a lot of rabbis working on it, and then this myth. What, rabbis? Yeah, this myth came up, which was propagated a lot during the period of British colonialism, कि Pashtuns are the lost tribe of Bani Israel. No, they're not. And उसी चक्कर में this thing got not exactly just propagated, but it sort of got adopted कि इल्ज़ाम लगाना काफ़ी है, because in Judaism, if you accuse someone, the accusation alone is enough. Okay. But that was not the case. The accusation is alone enough to what? To prosecute the other person. In Pashtun Wali, if you accuse someone of something, you have to bear the burden of providing evidence for it. Okay. So Pashtun Wali, basically the term is for a good person in general, जो कि हम लोग डेली लाइफ में रखते हैं कि यार ऑनरेबल होना चाहिए, इंसान को फॉरगिविंग होना चाहिए, ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होना. Forgiveness is a very big part of this. जो नाना वताई का पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर regardless of whatever I have done, even if I have slaughtered your whole family, अगर मैं आपके दर पे आके मैंने आपसे माफ़ी मांग ली है and I'm sincerely asking for forgiveness, then you have to forgive me. अच्छा, अब बीच में जूडिज्म भी आ गए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. अब मैंने भी यही सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा की और पश्तून लोगों की काफ़ी डाइवर्स हिस्ट्री, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है. तो कौन से ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिसने पख्तूनख्वा कल्चर, पश्तून कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है और शेप किया है? I think the first thing is the Yusufzai massacre in Kabul at the hand of the Persians, because that is when they first migrated to what is now Pakistan. And after that, यहाँ से they grew into establishing the first Pakhtun state, which was the Yusufzai state. Yusufzai family is a tribe. Yeah, it's a tribe. When they moved here, first they had a battle with another tribe, the Dilazaks, who actually gave them refuge here. Very interesting story. And then the first Pashtun state was established. And it actually stretched as far as Shenyang in China. From Persia to China? From Pakistan to Shenyang, yes. Okay. Then, of course, there was Ahmad Shah Abdali, who laid the foundations for the state of Afghanistan and all of his conquests, because they played a major role, really.
क्योंकि again Afghanistan में the only rulers who have been really really successful are those who look towards expansion, because when you're in a landlocked very barren region, तो expansion is basically your means for survival. हाँ. And then of course you have the Sikh conquest of Peshawar and the Anglo-Afghan wars. अच्छा, ब्रिटिश कलोनियलिज्म से पाकिस्तान, इंडिया सब कॉन्टिनेंट सब पे बहुत इन्फ्लुएंस है. हमारे कल्चर में अभी भी ऐसी ऐसी हरकतें हैं हमारी जिनको हम लोग कहते हैं कि हम गुलाम कौमी, हमारी अभी भी सोच वही है. वॉज द ब्रिटिश रूल एबल टू चेंज पश्तून कल्चर एज सच? जिस तरह हम देखते हैं पंजाब कल्चर में भी कुछ चीज़ें हैं, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो काफ़ी ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो हम लोग ब्रिटिश से आई हैं. I think it has, because when the British tried to politically, control KPK, they didn't really care कि पश्तूनों के internal dynamics क्या हैं और क्या नहीं है. What they needed were tools to, just sort of oppress people, जिसमें 40 FCR था, and also the fact कि यही जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि इल्ज़ाम लगाना is enough. तो a lot of the culture of honor killings began during that time. During British colonialism? Yes. Because then अगर इल्ज़ाम लगाना काफ़ी है तो फिर कोई भी किसी पे भी इल्ज़ाम लगा ले. If I don't like you and you're a business competitor, I can't just go in and kill you. I need an excuse. So That what I will do excuses is I will join hands with someone in my family. उसके साथ मिलके आप पे इल्ज़ाम लगाया, दोनों को मार दिया, job done. पश्तून कल्चर और ये एरिया जो है केपी का, अफ़गानिस्तान भी इसमें बीच में आ जाता है. हम सुनते हैं कि इस्लाम, बिफोर इस्लाम केम हेयर देयर वाज अदर इन्फ्लुएंसेस. गंदारा सिविलाइजेशन का भी था इसके अंदर, बुद्धिस्ट कल्चर्स भी थे, पारसी कल्चर भी था, आग पूजने वाले. वो अभी भी हैं या इस्लाम हैज़ एराडिकेटेड एनीथिंग टू डू विद दोज कल्चर्स? I don't think they've been entirely eradicated. जैसे for example एक फेस्टिवल है नौरोज़. नौरोज़ अमूमन अब नहीं मनाया जाता पाकिस्तान में KPK में as such. What is that? Nowruz is the Zoroastrian New Year festival. उसके बाद then we have the Pashto months, which are a lot like the traditional months we have in Punjabi or in Sanskrit. So there's a considerable amount of Hindu influence there. Also, अगर आप पश्तो literature खोल के देखें तो all of the Pashto literature at present goes back to some 1000 years. And that's because जो पश्तो का पुराना script था, that was actually Devanagari. So in historical terms, that's not too long ago, 1000 Yeah, years. 1000 years is not too long ago. But for us it is, because criminally underdocumented history, yeah. When did Islam come to KP? अगर 1000 years पहले तक पश्तून उसमें पश्तो में लिखी जाती थी चीज़ें? देवनागरी में लिखी जाती थी पश्तो. Pashto still has its own script, but the characters are taken from the Persian Arabic scripts. Okay. उसके अलावा जो है, if you look at the खुदाई खिदमतगार movement, which is something pretty recent, उनकी काफ़ी struggle रही है against colonialism, and even afterwards, after partition and state oppression, it's this big thing you cannot just separate from KPK ever. I think at its core, the movement was very Buddhist, because the things they wanted to focus on, like enlightenment, education, peace, love, all of that. So I think these are inherently very Buddhist values. As far as Persian is concerned, I think Pashto ne not just linguistically एक बहुत heavy influence लिया है, also in terms of folklore. Like Pashto folklore में एक creature है गोरगाख. It digs up graves, and Farsi में गोरगाख, and Farsi में इसको गोरपट कहते हैं. So it's essentially the same creature. Then you have Deo Safed, who's the king of the Deozat. Deos essentially come from not medieval, but ancient Farsi mythology. Then there's also देव का concept तो उर्दू में भी है, हम पंजाब में उर्दू में भी है, वो This is the same फारसी से creature है. or entity. बिल्कुल. और बाकी सेंट्रल एशिया में जैसे जो तिमोरिड्स थे, because essentially all of Central Asian nomads, even after Islam came in, marrying widows was okay, divorce was not a taboo topic, joint family systems, is तरह की चीज़ें, a lot of these which were there and which were also Islamic, I think we took in a considerable amount of Hindu influence, because now a lot of these things have become, not the norm per se. You touched on the topic of folklores and folk tales.
आई थिंक कोई भी सोसाइटी होती है, सिविलाइजेशन होती है, उसके अंदर जो कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को सुनाई जाएँ, किसी को भी सुनाई जाएँ, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको रिपीट किया जाता है, दे आर वेरी एसेंशियल टू द अपब्रिंगिंग एंड द न्यू जनरेशन, क्योंकि उसमें ऐसी वैल्यूज़ इंस्टिल की जाती हैं जो बच्चे की इंडोक्ट्रिनेशन में होती हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि सोसाइटी विल लास्ट एंड विल हैव सम वैल्यूज़ जो कि एसेंशियल हैं. और सारी दुनिया की सिविलाइजेशंस में कुछ वैल्यूज़ सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं एटलीस्ट. तो लेकिन उनकी स्टोरीज ऑब्वियसली हर फोक टेल फ़र्क होती है. और आई हैव ऑलवेज बिन फैसिनेटेड बाय, मुझे भी बचपन में माँ बाप स्टोरी सुनाते थे, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होती थी. मैं कार्टून्स देखता था, अभी भी मूवीज़ देखते हैं. इवन एनी स्टोरी टेलिंग, इट नीड्स अ मॉरल, इट नीड्स अ लेसन. पश्तून कल्चर की, एक तो हमें वैसे पश्तो समझ नहीं आती, सो वी हैव नेवर हर्ड कोई स्टोरी. पश्तो स्टोरीज़ या पश्तून स्टोरीज़, फोक टेल्स कैसी होती हैं, और उन कोई डिफरेंट वैल्यूज़ वाली स्टोरीज़ ही हमें सुना दें आप. अच्छा, तो I think there's a lot of interesting stories in Pashto folklore. I will tell you one of my favorite stories जो मुझे नानो छोटे होते सुनाती थी. ये मैं सुने बगैर सोती नहीं थी जब मैं उनके घर जाती थी. Angaya Bangaya, there are two baby lambs and their mother tells them don't open the door for anyone else, but they do. फिर उन्हें भेड़िया ले जाता है. फिर जब भेड़िया उन्हें किडनैप करके ले जाता है तो जो बकरी होती है वो एक लोहार के पास जाती है और वो उसको कहती है कि मेरे सींग तेज़ कर दो, मैंने भेड़िए से लड़ना है. तो वो लोहार उसको कहते तुम मुझे क्या दोगे, तो क्या दोगी. तो शी सेज़ कि मैं आपको रोज़ दूध ला के दिया करूँगी, आप अपने बच्चों को पिलाना. वो उसके सींग तेज़ कर देता है. फिर भेड़िया आता है उसी लोहार के पास और उसको कहता है मेरे दांत तेज़ कर दो, मैंने बकरी से लड़ना है. वो कहते हैं क्या करोगे. वो कहता है कि अगर तुमने मेरे दांत तेज़ कर दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा. तो जब लोहार को ये थ्रेट मिलता है तो वो भेड़िए के दांत और ख़राब कर देता है. तो इवेंचुअली जब उनकी लड़ाई होती है बकरी जीत जाती है एंड शी गेट्स हर किड्स बैक. आई थिंक इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर अ फेवर यू नीड टू डू अ फेवर इन रिटर्न. बी ऑलवेज लिसन टू योर मदर. सी you have to protect your family at whatever cost, even if it's dangerous. Even if you're a sheep and you have to fight a wolf. Yeah. Don't threaten anyone. ज़बरदस्ती आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, वो उल्टा आपके गले पड़ेगा. And also I think don't talk to strangers. One other story which I always find really funny. एक बच्ची होती है फबो, वो जंगल में जाती है वैसे ही फूल वगैरह इकट्ठे करने. तो उसको जो है a Deo finds her and she makes friends with the Deo. Eventually the Deo, now that he's friends with her, now he wants to eat her. तो जब वो उसको मजाक मजाक में ये बात बताता है, वो बच्ची जाके अपनी अम्मा को बताती है. तो उसकी वालदा जो होती हैं वो she creates a statue of Phabo out of गुड़ and puts it in her bed. तो जब देव आता है और वो देखता है ही स्टार्ट्स टू ईट हर, बट इवेंचुअली उसको शुगर रश हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है. सो आई डोंट नो व्हाट द मॉरल रियली इज़ हियर, दैट यू आर सपोज टू नॉट ईट टू मच गुड or not make friends with you, but I just find it really funny because the concept of a sugar rush to a Deo is just ridiculously hilarious. I mean, it is ridiculous and it is funny. But I think again folk tales में से आप ये entertainment का element entirely minus नहीं कर सकते. Obviously entertainment तो होती ही इसलिए है ताकि जो आप वो entertainment is good और something sweet और उसके अंदर lessons और values होती हैं, they're like a pill. Yeah. So they're easier to swallow. They're Sugar coat easier करने के to लिए आपको swallow. entertainment किसी भी lesson value बाकी के there is one folk tale जो I mentioned earlier about the Dilazaks and the Yusufzais. किस्सा कुछ यूँ है कि कुछ यूसुफजई लड़कियाँ और ख़वातीन जो हैं वो दरिया किनारे जो है अपने काम शाम कर रही थी, डूइंग द वॉशिंग एंड लॉन्ड्री एंड ऑल. एंड वहाँ से एक दिलाज़ाक लड़का घोड़सवारी करते हुए गुजरा. वो एक लड़की की चादर जो है उसने खींची एंड द गर्ल गॉट रियली मैड. शी सेड दैट यू आर गोइंग टू आंसर टू द मलिक for you know dishonoring me like this. This is not on. When that guy was called to accountability, the Lazaks refused to give him up. क्योंकि अगर आप he said, the Lazak chief basically said कि I will punish him myself my way. You don't do it. But they said, no, we're going to do it. Then the family of the girl said? No, the guy's tribe said कि we will punish him
on our own, we're not giving him up to you to punish. क्योंकि फिर सरदार की सरदारी किधर गई अगर उसने इस तरह की कोई हरकत कर दी, उसकी legitimacy under फायर आ जाती है कि मैं उसको खुद सज़ा दूंगा, आप छोड़ दें. खैर यूसुफजई नहीं माने उनकी, और फिर मोहम्मद ज़ईस they got into an alliance and they went to war, and the Dilazaks actually lost their entire kingdom. And from there, the Yusufzai state was established, and then it expanded. This is the same state which expanded as far as Xiangyang in China, which I mentioned to you earlier. This is a true story, or is this predicated upon hearsay and there are discrepancies in it? That I don't know, but it usually does not have any discrepancies in it. I've heard it from a lot of multiple people in conversation. ठीक है, ये कहानी लोग अपने own पे सुनाते हैं, but in the books of history ये in the books of history, I don't think it is stamped, but it is definitely a part of collective memory of people. So, and I think that itself is an alternate history. हाँ, हर चीज़ किताबों में नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं जो लोगों को जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती हैं, और वो कभी भी हम किताब में नहीं देखते. तो हम उन स्टोरीज़ को और उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकग्नाइज भी नहीं करते और उनको लेजिटिमेसी भी नहीं देते. बट इफ इट हैज़ बिन पास डाउन फ्रॉम सो मैनी जनरेशन, 2, 4, 6, 8, उसमें कुछ तो होगा कि हर माँ अपने बच्चे को सुनाती है, हर बाप अपने पोते, हर दादा अपने पोते को सुनाता है. बिल्कुल. एंड एक और कहानी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, विच अगैन हैज़ बिन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इज़ पश्तून वुमेन एट वॉर. लेजेंड हैज़ इट कि जब मंगोल आए थे और मंगोलों से पश्तूनों की लड़ाई हो रही थी, तो द मंगोल्स वर यूजुअली यूज्ड टू अटैकिंग फर्स्ट. दे वर हार्डली एवर पुश्ड इनटू डिफेंस. तो जो पश्तून लड़कियां थीं, दे टुक द रोल ऑफ आर्चर्स ट्रेडिशनली इन वॉर. एंड इनकी जब तीरंदाजी शुरू हुई थी, तो द फर्स्ट 2 lines of Mongol soldiers, they wreaked havoc on them because they attacked first. And after that, the Pashtuns actually won that one specific battle against the Mongols. And एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब अनमैरिड लड़कियाँ जाती थीं टू वॉर, they used to wear मेहंदी, they used to wear surma, and they used to wear sheen khal as well. Surma और मेहंदी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि in a lot of Pashtun tribes, when unmarried women used to die, they were first dressed as a bride and then उनको कफन पहनाया जाता था, and they used to be buried with their jewelry. It's a very sweet concept. Yeah. So wearing henna and wearing surma to war was just a sign to the enemy that we've come prepared to die. There's nothing you can do about it. It's a strong message, and that's women empowerment. And I think इन चीज़ों से शुरू होती है. I think women empowerment हमारे cultures में हमेशा से थी. We have suffered because of stereotyping. We have suffered because of how our history has been whitewashed. And we have suffered because, again, जब आप एक nomadic culture से निकल के एक जगह settle करते हो, तो you do take up extra influences. It's very natural because you don't exist in isolation. उसके अलावा हर culture के अपने standards होते हैं of their empowerment of women or rights and roles. Just because it's a Western concept, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्हीं के standards सब सही हैं. Exactly. हमारी And कुछ चीज़ें जो कि उनकी ख़वातीन नहीं करती हैं, they don't it's not consider just it anything. The fact that, like, in a lot of folklore, women have both roles. They were traditional homemakers. They were not doing jobs, but they were still going to war. Because the message is that you need to be able to protect yourself, which makes sense in the world, in like that era, jahan se ye folk tales hame aayi hain. And also, it also implies that the concepts of honor were very different. You have to be brave irrespective of gender. You have to put up a fight. Even if you're a woman, that's no excuse to not fight. And if, for example, like in the previous story, the woman was considered dishonored not because uska sar se dupatta utar gaya tha, because kisi ne jaan ke kheencha tha, with the intention of disrespecting her. If she's going to war and the chances are she might get kidnapped by the enemy, the chances are she might get assaulted,
the chances are she might pass away, she might die at battle. That does not impact her honor because she has gone there with a purpose. And regardless of the risk, her honor is not attached to her body. It is only attached to her physical existence in the case someone tries to do it on purpose. पश्तून कल्चर हम लोग तो अपने दोस्तों से ही पहचानते हैं ना, कि कुछ दोस्त हम देखते हैं बड़े बहादुर हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े तेज़ हैं गुस्से के, बड़े प्रिंसिपल्ड हैं, दे कीप देयर वैल्यूज़, बड़ी सख्ती से उनको एडहियर करते हैं. फिर कहीं कहीं हम सुनते हैं बड़े रोमांटिक भी होते हैं और बड़ी स्वीट बचकाना बातें भी होती हैं, इमेजिनेशन बड़ी होती है, बचपन की कोई स्टोरी सुनाते हैं, फेरी टेल्स भी आई एम श्योर सुनाते ही होंगे. तो उन लाइंस पे कौन सी ऐसी फोक टेल्स हैं जिससे हमें आगाह करेंगे आप? I think one of my favorite stories is Musa Khan Gul Makai. उसमें होता कुछ यूँ है कि गुल मकई is studying in a madrasa. They're all children. And she's like a favorite of her teachers. She's loved by her friends. वो होता है ना, that one kid who stands out everywhere. She's that person. She's amazing. And she's really pretty. And but her cousin, who's also her fiancé, he just sort of ignores her and takes her for granted. He doesn't even look at her. All of that. Then this new kid comes in, Musa Khan. And they become really good friends. And they start falling in love with each other. एक दफ़ा ये होता है कि they're playing by the river, all of these kids, and Gul Makai falls into the river because she slips. And जो उसका मंगेतर होता है वो शोर मचाता मचाता भाग जाता है गांव के बाकी लोगों को बुलाने के उसको बचाओ. And Musa Khan actually jumps into the river and he saves her. तो खैर Gul Makai's dad is really proud of him and all. But now there's a rivalry which is born between the fiancé and Musa Khan. ये चीज़ें चलती रहती हैं. फिर गुल मकई की एक दोस्त होती है. When in a turn of events Gul Makai gets grounded at home. And उसकी एक दोस्त फिर मूसा खान के और गुल मकई के बीच में बाय लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस करती रहती है. इवेंचुअली वो एक ख़त कहीं गिर जाता है मूसा से और वो उसके मंगेतर के हाथ लग जाता है. वो ख़त लेके गुल मकई के अब्बा के पास पहुंच जाता है. गुल मकई की शादी तय हो जाती है. शादी के दिन मूसा खान दुल्हन को भगा के ले जाता है. बीच में अच्छी खासी स्कर्मिशेस वगैरह होती हैं. एंड खैर कुछ दिन बाद मूसा खान गुल मकई से कहता है कि विल यू मैरी मी, एंड शी सेज नो, यू हैव टू स्पीक टू माई डैड फर्स्ट. इफ़ ही एग्रीज देन आई विल मैरी यू, विच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग. कि मतलब इस सब कुछ के बाद भी दैट्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. तो खैर ले दे के मूसा खान जाता है, उसके वालिद से माफ़ी मांगता है. एंड उसके बाद इवेंचुअली उनकी शादी हो जाती है. एंड एवरीबडी लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर. And I think the few key values it emphasizes on is friendship, how jealousy can ruin things for a lot of people. And also I think, keeping your parents' will above whatever you may want at the time. बिल्कुल. एक और स्टोरी है जो it's a little obedience funny. की और respect for the parents is paramount मेरे ख्याल से स्टोरी के lessons. Yes. तो खैर अच्छा, there's this one really funny story, but I think उसका moral बहुत important है. एक बंदा होता है पंजा खान. He's a coward, even though देखने में he's very handsome. 6 फुट से लंबा कद होता है, very broad built, everything. And पूरे गांव में पंजा खान एक ही बंदा है जिसकी 2 बीवियाँ होती हैं. And वो काफ़ी गरीब भी होते हैं और उसकी दोनों बीवियाँ उससे बहुत तंग होती हैं. एक दिन होता ये है कि कोतवाल आता है और वो सबको कहता है कि आपने शाम के बाद घर रहना है क्योंकि बाहर एक बला है. अब गांव में बला आ गई है, सारे घर में बंद हो गए हैं. तो पंजा खान जो है वो अपना घर के अंदर अपना घर का दरवाज़ा बंद करता है. सारा चारपाई कुर्सियाँ जो उसको मिलता है वो सारा दरवाजे के आगे बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके घर में छुप जाता है. उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो उनका गधा है वो बाहर रह गया है. उसकी दोनों बीवियाँ उसको लान तान करती हैं कि मतलब बाहर बला है, हम दोनों जाके गधा लेके आए, जाओ. वो उसको बाहर भेजती हैं. तो उसको अंधेरे में कोई एक चीज़ मिलती है जिसको वो कान से पकड़ के घर ले आता है लान तान करता हुआ. वो जब घर के अंदर लेके आता है और वो दिए की रोशनी में देखते हैं तो वो कोई शेर पकड़ के ले आया होता है. तो उसकी जो दोनों बेगमात हैं वो ये स्कीम लगाती हैं कि अच्छा इससे तो कुछ नहीं होना, अब इसी को इस्तेमाल करते हैं, खैर है गधे की, कोई बात नहीं.
वो शेर को बांध लेती हैं और अगले दिन शेर जो है उठा के कोतवाल के पास ले जाती हैं कि बादशाह को जाके बोलो कि बला तो नहीं मिली, लेकिन ये शेर एक फिर रहा था और ये आदमखोर है और इसको पंजा खान ने पकड़ लिया है। उन्हें अशरफियाँ वगैरह मिलती हैं, काफ़ी पंजा खान की वाह वाह हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। बादशाह जो है वो अपनी तलवार और शील्ड और रॉयल गार्ड का यूनिफॉर्म पंजा खान को भिजवा देता है कि अब तुमने पहरा देना है गांव की गलियों में, क्योंकि बला खुली घूम रही है। पंजा खान के तो ले दे के जो है उनकी तो मतलब हालत वो हो जाती है कि अच्छा अब मैं क्या करूं, अब कुछ कर भी नहीं सकता, मना किया तो बादशाह सर उड़ा देगा। खैर फिर जब रात का टाइम होता है फिर उसकी बीवियाँ उसे लान तान करती हैं कि मतलब जाओ कम से कम एक चक्कर तो मारो कि कोई देख ले, कि लोगों को ये तसल्ली हो जाए कि तुम पहरा दे रहे हो। गली में उसको एक बूढ़ी औरत नज़र आती है और वो उसको कहती है कि मेरा जो बेटा है उसको बला मार गई है छत के, और वो मेरी घर की छत के ऊपर है, तो मुझे ज़रा कंधा दो कि मैं एक दफ़ा उसे देख लूँ इससे पहले कि बला उसको ले जाए। वो उस बूढ़ी औरत को कंधा देता है और थोड़ी देर बाद ना उसको कुछ टपकता हुआ फील होता है अपने बाजू पे। जब वो ऊपर देखता है तो वो बूढ़ी औरत उस लड़के को खा रही होती है। इसकी जान निकल जाती है और ये सिर्फ अन्नेवाह अपनी तलवार चलाता है और वहाँ से भाग निकलता है। वो घर आके किस्सा सुनाता है तो उसकी बीवियाँ फ़ौरन उसी जगह पे जाती हैं। होता ये है कि बला का जो बाजू है ना वो कट के उधर ही गिर जाता है, तो वो बला का बाजू उठा के ले आते हैं। पंजा खान को फिर इनाम वगैरह मिलता है, सोने की अशरफियाँ ये वो। उसके बाद बला जो है वो शहज़ादी को किडनैप करके ले जाती है। अब जब ये हो जाता है तो बादशाह कहता है नहीं, अब शहज़ादी को तो पंजा खान ही छुड़ाएगा, अब क्या करें। तो खैर ले दे के उसकी बीवियाँ जो हैं उसको अगले दिन सुबह घोड़े पे बिठाती हैं, उसको तलवार पकड़ाती हैं और वो ना उसको घोड़े से बांध देती हैं कि ये उतर के भागे ना। जब गांव वाले आके पूछते हैं कि ये क्या कह रहे हो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें पंजा खान ने खुद कहा है कि मुझे बांधो कि मैं डर के उतर ना सकूं घोड़े से। तो खैर गांव में काफ़ी पंजा खान की वाह वाह होती है और घोड़ा जो है वो सरपट दौड़ जाता है जंगल की तरफ जहाँ पे सारी बलाओं ने अपना पड़ाव डाला हुआ है और शहजादी को उधर छुपाया हुआ है। अब जब वो भागता है पंजा खान को रास्ते में एक दरख्त नज़र आता है। उसने कहा और तो कुछ नहीं होता, दरख्त को पकड़ के कोशिश करता हूँ घोड़ा रुक जाए। वो दरख्त उखड़ के उसके हाथ में आ जाता है। जब बलाएं देखती हैं कि एक बंदा घोड़े पे सरपट हमारी तरफ सीधा आ रहा है और उसके हाथ में पूरा का पूरा दरख्त है, तो वो सारा कुछ छोड़ के भाग जाती हैं डर के मारे कि ये पता नहीं कौन आ गया है। और वो शहज़ादी को वहाँ से ले आता है। जब शहज़ादी वापस आ जाती है तो उन्हें इनाम भी बहुत ज़्यादा मिलता है और पंजा खान वज़ीर सल्तनत भी बन जाता है। उसकी शहज़ादी से शादी भी हो जाती है, उसकी बीवियों को पैसों से गर्ज था उन्हें वो भी मिल जाते हैं। तो आई थिंक द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ के रिगार्डलेस ऑफ आपको कितना डर लग रहा हो, यू डू हैव टू फेस एडवर्सिटी because if you go have into no a other situation, options. If you're in a situation and you have to put up a brave face, you whatever do the it. result, it's better जो to भी go result into the हो, situation exactly. than avoid it. Then avoid it. तो बड़ी अच्छी स्टोरी है। But ये जब कहाँ मैंने से सुनी आपने ये मुझे एक दोस्त की नानो ने सुनाई थी। वेरी लकी ऑफ यू। मतलब दोस्तों की भी नानो वगैरह नहीं। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी। आई थिंक आजकल के ज़माने में नहीं, हर ज़माने में इस चीज़ पे फोकस कराना कि जो भी हो रहा है, जो भी मसला है, यू फेस इट हेड ऑन, उसके बाद जो होता है वो देखी जाएगी। और आई थिंक जो बहादुरी का कॉन्सेप्ट है पश्तून कल्चर में, वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इट्स वेरी राइट। एंड इट ऑल्सो गोज़ हैंड इन हैंड विद ओबीडियंस। जैसे मेरी नानू ने मुझे बचपन में बहुत दफ़ा एक कहानी सुनाई थी। एक छोटी बच्ची होती है जिसकी अम्मी उसको कहती हैं कि तुमने मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं खेलना। वो एक दिन खेलती रहती है, उसको भूल जाता है, वो निकल जाती है गांव में गलियों में इधर उधर। एंड देयर इज़ एन ओल्ड हैग बारबीताई। वो ओल्ड हैग, इट्स समथिंग बिटवीन दियोनी एंड अ बला। वो उसको ले जाती है बच्ची को अपने गार वगैरह में। उस छोटी बच्ची के 4 भाई होते हैं, तो जो उनकी माँ होती है वो कहती है जाओ जाके उसको लेके आओ। तो देन दे प्लॉट टुगेदर, इवेंचुअली दे ब्रिंग द सिस्टर बैक होम। एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी बेसिकली इज़ दैट you have to protect your family regardless of, even if you have to fight something supernatural, regardless of how dangerous it is. And you also have to always listen to your parents. फोक टेल्स आई थिंक बड़ी अच्छी होती हैं टू इंस्टिल दीज वैल्यूज इन चिल्ड्रन। एक जो हम ना
मैंने जो नोट किया है पख्तून कल्चर में बहादुरी और रिलीजियसनेस को हम बहुत देखते भी हैं और फोकस भी करते हैं, हम उसको उसी से रिप्रेजेंट भी करते हैं। विजडम बहुत ज़्यादा है पख्तून कल्चर में। एक स्टोरी जो मैंने सुनी हुई है, वो भी 2 शोज से ही सुनी है, वो कहीं एक दूसरे को जुगतबाजी में और उसमें सुनाई। वो कहता है यार हम सारे बात करते हैं यार हमें किसी तरह बस किस्मत खुल जाए ना हमारी, ये हो जाए वो हो जाए। तो उस पर उसने मुझे एक बताया, कहता है 2 भाई होते हैं और एक भाई बहुत खुशकिस्मत होता है, दूसरा बदकिस्मत होता है। सो भाई अपने भाई से कहता है कि यार तुम्हें ये गुड लक फॉर्चून कहाँ से मिला? तो ही सेड जंगल में जाओ एंड यूल फाइंड एन एंटिटी जो कि हु गिव्स आउट गुड फॉर्चून, तो वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी दे देगा। तो ही गोज इन टू द फॉरेस्ट, वो पहले जाता है, उसको एक शेर मिलता है जो कमज़ोर सा बीमार सा होता है। उसको शेर उस बंदे को कहता है कि यार तुम कहाँ जा रहे हो? ही सेज मैं अपना गुड फॉर्चून लेने जा रहा हूँ। तो कहता है जब उसके पास पहुँचोगे ना तो उससे पूछना कि मैं सब कुछ खाता हूँ सब कुछ करता हूँ मैं, लेकिन बीमारी से नहीं निकल पा रहा। तो बंदा कहता है ठीक है मैं पूछ दूंगा। आगे जाता है, एक घोड़ा मिलता है, वो भी कमज़ोर होता है। वो कहता है यार मेरे लिए भी पूछना कि मैं क्या करूं तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। कहता है ठीक है। आगे जाता है, एक दरख्त मिलता है जिसके पत्ते नहीं होते, बीमार होता है या बदकिस्मत होता है। वो भी कहता है जब अपने गुड फॉर्चून के पास जाओगे तो मेरे लिए भी पूछना कि मैं क्या करूं कि मेरे दोबारा हरे पत्ते आ जाएं। खैर वो आगे जाता है तो उसको फॉर्चून एंटिटी मिलती है। वो कहती है यू हैव योर गुड फॉर्चून, अब तुम्हारी किस्मत खुल गई है, वापस जाओ, चले जाओ, अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी किस्मत खुली रहेगी। तो वो वापस जाता है और वो उससे सवाल पूछता है कि मुझे ये 3 चीज़ें मिली रास्ते में, उन्होंने ये सवाल किए। तो वो उनको जवाब देता है कि इस दरख्त को ये बताओ, उस घोड़े को ये बताओ। वो दरख्त के पास जाता है तो दरख्त पूछता है हाँ मेरा जवाब क्या है? तो वो कहता है कि तुम्हारी जड़ों में एक ख़जाना है, देयर इज़ अ ट्रेजर, जब वो कोई खोद के निकाल लेगा तो तुम्हारी जड़ें खुल के आगे तुम्हें खुराक दे सकेंगी। तो दरख्त उसकी मिन्नतें करता है कि मेरे लिए ना मैं खोदो में मट्टी और मेरी जड़ों में से ख़जाना निकाल लो। वो कहता है मुझे ख़जाने की क्या ज़रूरत, मेरे पास मेरी तो किस्मत खुल चुकी है। फिर वो आगे जाता है घोड़े के पास। घोड़ा कहता है मेरे लिए क्या हुक्म है? तो कहता है तुम अपने लिए एक सवार ढूंढो, एक मालिक ढूंढो जो तुम्हें रोज़ दौड़ाए, तो तुम तंदुरुस्त हो जाओगे और ताकतवर हो जाओगे। तो घोड़ा उसकी मिन्नतें करता है कि मेरा मालिक बन जा, मेरा सवार बन जा और मैं तेरा फर्मा बरदार बनूंगा, मैं तंदुरुस्त। वो कहता है मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारी, मेरी किस्मत खुल चुकी है। आगे जाता है शेर के पास। शेर कहता है मुझे बताओ मैं क्या खाऊं कि मैं वापस में बीमारी ख़त्म हो जाए? तो कहता है तुम एक बेवकूफ़ को खाओ तो तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और साथ वो सुनाता है कि यार पहले मैंने इसकी भी हेल्प की है, एक दरख्त को भी बताया कि उसको क्या ज़रूरत है, एक घोड़े को भी बताया, अब तुम्हें भी बता रहा हूँ। शेर जब ये बातें सुनता है कहता है मैं पहले तो तुझे खाऊंगा ना, तू बेवकूफ़ है। तो उसने क्या कहता है मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, किस्मत खुलने का मकसद होता है अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी आप जब तक देख के उसको सीज नहीं करते, दैट मीन्स यू आर स्टूपिड। आप जो मर्जी कर लें आपके लिए कोई खलाई मदद नहीं आएगी। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व इट, यू कैन सी इट, सीज इट। मैंने लिटरेचर पढ़ा है, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, मैंने ये इतनी प्यारे तरीके से ना इस तरह की बात कम सुनी है। एंड ऑल्सो कि आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल जाएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक कोई और आके आपके लिए दरख्त खोद के आपको ख़जाना प्लेट में रख के नहीं देगा। बिल्कुल, वो आपने मेहनत मुशक्क़त खुद करनी है। ये इसी तरह की वो स्टोरी भी है ना कि एक इट्स अ जोक्स और इनमें लेसन्स होते हैं कि एक शिप में लोग जा रहे होते हैं और एक बड़ा रिलीजियस इंसान होता है। जब कश्ती डूबती है ना तो वो बंदा पानी में गिर जाता है और वो वहीं पे स्टक होता है। तो एक शिप आती है, वो कहते हैं आओ हम तुम्हें निकाल के जाएं। कहता है नो नो नो, गॉड विल सेव मी, आई बिलीव इन गॉड, यू हर्ड द स्टोरी। दूसरी आती है, तीसरी आती है, कहता है गॉड विल सेव मी, और वो ही ड्राउन्स एंड डाइज। तो जब वो अल्लाह के पास जाता है, वो मतलब खुदा के पास जाता है, वो कहता है आई वॉज होपिंग कि आप मुझे बचाएंगे, मैं डूब के मार गया। कहता है स्टूपिड, आई सेंट 3 ships। तो वो इस तरह की बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड आई थिंक विजडम का कल्चर, वैल्यूज़ बहुत प्यारे तरीके से आपने भी जो स्टोरीज बताई हैं ऑफ ओबीडियंस, ऑफ गोइंग इनटू अ सिचुएशन रिगार्डलेस ऑफ नॉट नोइंग कि आउटकम क्या होगी, ये हमारे पख्तून कल्चर को रिप्रेजेंट भी करती है। और ये वैल्यूज़ सिर्फ उस कल्चर में नहीं
हम सबको इंस्टिल करनी चाहिए अपने बच्चों में, सब ये अलग अलग स्टोरीज होती हैं, बट वी शुड सेलिब्रेट दीज और इनको देखना चाहिए. And also, I think Pashtun romances mein, you will find a lot more happily ever afters than in Punjab or in Sindh, because most of them have very tragic ends. सडिस्टिक हैं थोड़े से इस लिहाज से. थोड़े से मतलब दोनों मर गए, जहर दे दिया, कोई डूब गया, कोई थल में जल गया, इस तरह की चीज़ें. In Pashtun culture, we have a lot of very nice stories. Some of them are sad, like two people who didn't end up together ended up getting buried together, Adam Khan Dur Khane. Then there's this one other story, Shahzada Behram ki. He ends up getting kidnapped by a girl and being whisked off to Koh Kaf. वहाँ पे उसको एक परी से मोहब्बत हो जाती है, इवन दो बीच में ही कम्स बैक क्योंकि उसकी सल्तनत चली जाती है. एंड वहाँ पे द परी, शी गेट्स taken away by her father and locked behind 7 doors in a tower to keep her away because her parents don't want her to marry a human. Eventually, he goes to war with the fairies and he wins his wife back and he brings her. There's a lot of magic involved and they do live happily ever after. So I think that's very cute. बड़ी होपफुल सी. Then there's Saif al-Malook and Badri Jamala, जो पंजाबी में भी है, हिंदको में भी है, पश्तो में भी है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बलूची में भी है. इट्स अनदर हैप्पीली एवर आफ्टर विद अ फेरी. Then you have Chitrali folk tales, which are not exactly Pashto, but still Chitral is a part of KPK, so I would like to mention that here. So I think as far as romance is concerned, there's a lot of adventure involved, and most of them are happily ever afters. कुछ कल्चर्स के फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस तो हम लोगों के थ्रू इस्लाम आए हैं, बिकॉज इस्लाम को हम दीन कहते हैं. ईद उल फितर और ईद उल अज़हा तो हम मनाते ही हैं. माइट भी उसमें थोड़ी सी ये है कि वो एक दिन पहले चांद नज़र आता है किसी को, एक दिन बाद किसी को नज़र आता है. बट इस्लाम तो केपी में और सॉरी इस रीजन में पख्तून कल्चर में बाद में आया है. उससे पहले कौन से ऐसे फेस्टिवल्स कोई हैं और कोई ट्रेडिशंस जो कि उनके अपने हैं? अच्छा, as far as festivals are concerned, क्योंकि पहले जो इससे पहले जो हमारे religions थे KPK में और अफगानिस्तान में, it was either Buddhism or it was Zoroastrianism for the most part, other than small communities here and there which followed other religions. And then there was obviously Hinduism for a while. There are still some Hindu Pashtuns. They are. There's a lot of them in Kohat in particular. That's my mom's hometown. तो लेकिन जो है other than these festivals which were celebrated, I'm not sure of any ethnic festivals which were there. But one interesting thing I found out a few days ago was कि जो सफ़र का महीना है वो पश्तो में बहुत भारी महीना समझा जाता है. एंड इसमें 1st से 15th तक सफ़रा आबे, which is like an old woman, she descends on the streets and वो मगरिब के बाद गलियों में घूमती हैं. आबे basically means old woman, जैसे like आंटी, कोई बूढ़ी खातून है, उनको आप नाम तो नहीं लेते ना, बिल्कुल, तो जो नाम के आगे लगाते हैं. बिल्कुल पंजाबी में बेजी कह देते हैं. हाँ जी. तो वो पीछे से आके आपको कमर पे चपेड़ मारती हैं एंड शी किल्स यू. क्या होता है? वो आती हैं, आपको पीछे से एक चपेड़ रखती हैं और you die. This is a old legend? Yeah, this is a legend. And interestingly, 15th के बाद जो demons उतरते हैं, most of them target children. And इसमें you have the Varanda and the Gul Shakara. I apologize if I'm getting some of the pronunciations wrong. लेकिन I wouldn't there's this element of deformed demons. एक अंधा है, एक कोई काना है, कोई डोरा है. Then there's one जो लंगड़ा है. So for me, that's very funny because like representation, bro. I don't know how this comes or how this came in. खौफनाक चीज़ें तो हर कल्चर में represent होती हैं, तो different उनकी physical appearances होती हैं. वो might be आप कहें कि उसकी टांग होती है कि तो हम एक टांग देख के कहते हैं लंगड़ा है. ये भी हो सकता है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अब लाइक ये इस्लामिक तो नहीं है कि ये महीना हल्का है कि भारी है, ऐसी कोई चीज़ रिलीजन में नहीं है. तो ये कल्चर में कहाँ से आई
किस कल्चर से इन्फ्लुएंस होके आई, किस रिलीजन से इन्फ्लुएंस होके आई. तो आई थिंक इट अब ओपन्स लेजेंड्स अप अ लॉट कैसे ऑफ बिल्ड होते हैं, क्वेश्चंस. स्टोरीज और इस तरह की फोक It's टेल्स a very कहाँ से बनती interesting हैं? case for anthropological research. कल्चर के ऊपर जब हम भी बात किसी भी चीज़ में करते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी जो प्रोमिनेंट चीज़ होती है आप दैट यू सी विद योर आइज इज अपीयरेंसेस, क्लोथिंग्स, मेकअप, ज्वेलरी, फुटवेयर. इसके ऊपर कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब हम तो बहुत सी चीज़ों को ना इकट्ठा कर जाते हैं, बट कौन सी चीज़ें आर यूनिक टू पश्तून्स और उनको रिप्रेजेंट करती हैं या दे होल्ड डियर एज देयर ओन? अच्छा, इसमें the Pashtuns had a lot of different types of things they wore, and these varied a lot by location, which I think is very interesting and also very natural. Even though अब अगर हम पश्तून अटायर सोचें तो हमें मर्दों के लिए शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट और सात पाकोल जहन में आता है, एंड फॉर वुमेन इट्स द फ्रॉक एंड द शलवार, घाघरा जिसको कहते हैं. बट एक्चुअली हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था. लाइक अगर मैं आपको 19th सेंचुरी के अटायर पे ले जाऊँ तो जो अम्ब वाला इलाका है, Which is where? which is around Dir and Sawat, ठीक. ये वाली जो रीजन है, यहाँ पे women used to wear कुर्ती with a लहंगा. लहंगे के साथ नीचे पजामा होता था, a ये fitted one. नॉर्मल डे Normal everyday wear. every day. And with very loose sleeves. The style of kurtas was the same in Punjab and KPK. छोटी कुर्ती होती थी but बहुत loose होती थी with loose sleeves. फिर अगर आप if you go towards the Yusufzai state, सवात, मर्दान, ये वाले, नौशहरा, ये वाले सारे इलाके, यहाँ पे it was the same, घाघरा with underpants and short kurtis, loose kurtis but with slightly tighter sleeves. क्लोथिंग और कल्चर बड़े क्लोजली रिलेटेड होते हैं. एक चीज़ मैंने सुनी है, मैंने कभी नोटिस नहीं की ना देखी है किसी दोस्त में या किसी ट्रिप पे पख्तून लोगों में, टैटूज़ का कॉन्सेप्ट भी पश्तून में है. बिल्कुल है. व्हाट इज़ दैट? शीन खाल जो है वो बेसिकली एक ट्रेडिशनल टैटू होता था, एक सॉफ्ट सा पाउडर. जैसे पहले द सुरमा, नेम इज शीन खाल शीन खाल. जी. तो जैसे पहले सुरमा ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना करता था ना, लाइक अ बंच ऑफ मिनरल्स एंड कलर एंड रॉक्स जस्ट ग्राउंड टुगेदर, उसी तरह पश्तून कल्चर में भी ये शीन खाल के टैटूज़ का वो जो एक इंक है वो बनती थी. तो इट हैड लाइक अ ब्लू ग्रीन टिंट टू इट एंड इट यूज्ड टू डाई आउट ओवर टाइम. एंड जिस तरह इट यूज्ड टू बी लाइक अ सिंगल नीडल prick. Like needles used उसका to कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइन था या बस या आप उससे कुछ भी लिखवा designs दो? used to vary. It was either 3 dots or 4 अच्छा, डॉट्स लगते थे. dots लगते थे. So like 3 dots in a triangle Why haven't I or seen 4 it dots anywhere? in a diamond. Um, well, actually, what happens is कि 2-3 needles are like tied in together. उसके बाद they prick your skin and when it starts to bleed, उसके ऊपर सुरमा लगा दिया जाता था because that works as a healing thing. And the actual ink, it used to get trapped beneath your skin. ये हमेशा से इनके कल्चर में था? ये हमेशा से था. नॉर्थ अफ्रीका, द मिडल ईस्ट एंड ये खुरासान, सेंट्रल एशिया, a lot of tribes here had facial tattoos. Even if you go along the Himalayas. अच्छा हाँ, बाय द वे ये टैटू बॉडी पे किस जगह पे, फेस पे? Yeah, on the face. Because Where? it was like a symbol of beauty for young women. So either on the cheeks or on the chin. And in some cases, sometimes also on the forehead. But relatively more on like the cheeks, either. या फिर आपकी But was it chin exclusive पे. to women या मर्द भी करा? Men could also get it done, but they never got it in a place जहाँ पे नजर आए. Okay. So it started to disappear gradually after the 60s and 70s. I think it had a lot to do with the Soviet invasion. अच्छा हाँ, वहाँ with पे the it disrupted. Islamization of Pakistan as well as Afghanistan. Yes. एक तो वैसे cultural practices got disrupted because you're in the middle of a war. And also because जब Islamization आई तो then this belief came up that okay, it's not permissible in Islam. It's not a belief in Islam. So that's why, things changed. But if you meet older women who were like, like they were old enough in the Pre-Soviet war. 60s and 70s, some of them still do have their tattoos. And also because ये सारे natural ingredients use होते हैं, तो it does eventually wash over with time. ठीक. अच्छा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, केपी,
every terrain, every region has its differences in culture, food में especially, और because of the physical terrain कुछ changes होती हैं. केपी और अफगान मतलब ये जो बेल्ट है, इसकी टेरेन की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बाकी मुल्कों से, बाकी कल्चर से, सोसाइटी से, नेशन से डिफरेंट है, और क्या चीज़ हम लोगों ने अडॉप्ट भी कर ली है जिसको हम नोटिस नहीं करते अब? I think the first thing is difference in language. पश्तो पाकिस्तान में भी बोली जाती है, अफगानिस्तान में भी बोली जाती है. But if you look at Pashto in, let's say, Peshawar or in Nashara, the dialect is relatively a lot easier and a lot softer. If Easier you or go just softer? softer and easier. If you go towards the mountains, the dialects get harder, pronunciations change, they get harder. And I think also food, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी भी मिर्चें as such नहीं खाई जाती. food को तो हम miss नहीं कर रहे. Flavors and the spices are very Central Asian in nature. Okay. तो ज़्यादा मिर्चें नहीं खाई जाती. But if you come to this side, for example, you go to Peshawar and आप वहाँ पे कढ़ाई मंगवाओ, तो अगर आप पेशावर में बैठ के कढ़ाई खा रहे हो या लाहौर में बैठ के कढ़ाई खा रहे हो, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपको पेशावर में खाना फीका लगेगा. It will be less spice and more flavor, but it will still be accustomed to your taste buds. तो यहाँ पे even though generally if you compare it, कम मिर्चें खाई जाती हैं केपी में, but even then it's a lot of spice if you actually compare it to Afghanistan. And then I also think रोटियाँ. Like यहाँ पे जो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में मिट्टी के तंदूर बनते थे, वो तंदूर ज़मीन के ऊपर बनता था. तो हमारी वो we used to have those circular रोटियाँ जो लकड़ी वाला तंदूर नहीं होता था, उसमें जो लगती थी. तो they were like very small. I think जब आप ज़्यादा रफ टेरेन में रहते हो, you need more food for consumption because your life is naturally harder. तो अफगानिस्तान में जो तंदूर बनते थे वो ज़मीन के नीचे बनते थे. So you used to like dig up a hole and उसके अंदर रोटियाँ लगती थी. And I think that explains why अफगानी नान इतने लंबे होते हैं. Because if you have a really long tandoor beneath the ground, you sort of रोटी लगाते हुए आपका हाथ जल जाएगा. तो अगर वो नान लंबा है, it will just sort of cover your hand and keep you from injury. And also then there's the fact that you need more food. So it makes sense to have like a bigger naan to eat. And I also think historically, it's not just the terrain, it's also like, while it's understandable that Zoroastrian or Buddhist influence dono jagah raha hai in Pakistan and in Afghanistan, but in the Afghanistan side, because of more cultural interaction to date, they have a slightly more influence from the Parsis, whilst we have a slightly more influence from the Buddhists. किस तरह, मतलब वो नज़र कहाँ आता है? Like for example, the Parsis had a very strong sense of conviction about क्या सही है और क्या गलत है, and they stood by it because that was something religious for them. उसके बाद a very core tenet of Parsi belief was respect for creation. And जब communism full force के साथ आया था अफगानिस्तान में, तो even if you look at old documentaries and you look at places which have documented, you know, people who had nothing to do with politics just criticizing or resisting something. So a lot of it, it was not just the fact that the communists were propagating atheism. It was also something deeper and something cultural. A lot of people actually said that जो खुदा की तक़सीम है, they want to erase that and they want to redistribute things their own way. And this is interference with what God has decided for you. खुदा की तक़सीम As in कोई अमीर है, कोई गरीब है, जो भी है, जिसके भी पास जितना भी दिया है वो खुदा ने दिया है. आप उसकी तक़सीम को चैलेंज नहीं कर सकते. एंड आप ये नहीं कह सकते कि अब ये रिसोर्सेज हैं, पानी है, दरख्त हैं, खाना है, जो भी है. This is something nature gives as it wills, and it's not okay to control it. And I think maybe somewhere that was inherently rooted in Parsi beliefs, which predate Islam. Because again, वो एक चीज़ आपके अंदर internalize कहीं ना कहीं हो जाती है. If you look at this side, people have been very socially, culturally aware. There have been a lot of movements centered around education,
around enlightenment. लोगों ने बड़ी effort की है, and the focus has been education a lot of times. And I think that again is something we may or may not have, just sort of kept from our Buddhist traditions. अच्छा, फोक टेल्स के अंदर हर कल्चर के कुछ डीमंस होते हैं, कुछ हम बच्चों को कहते हैं बहू आ जाएगा। बाहर के चाइनीज़ फोक टेल्स में ड्रैगन्स का बहुत जिक्र होता है, स्पेसिफिकली हम उसको रिमेंबर करते हैं। पख्तून कल्चर में कौन से डीमंस प्रेवलेंट है? एक आपने बताई, एक बूढ़ी औरत जो थप्पड़ मार के बच्चे मार देती है, आई फॉरगॉट द नेम एज वेल। उसके साथ और कौन कौन से हैं? We have paris, which are always very nice, they're kind, they're helpful. जो जिन्हों की शहजादी है उसका जिक्र बहुत सी कहानियों में है, बट फॉर सम रीज़न उसका कभी नाम नहीं आता, एंड शी इज़ ऑलवेज साइडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टोरी. उसके बाद वी हैव शापिराई. शी इज़ अ वुमन हु लीड्स अ डुअल लाइफ. दिन को वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारती है और रात को वो दूर दराज इलाकों में कहीं चली जाती है. एंड उसके बाद अच्छा, दिस इज़ फ्रॉम द पश्तून बेल्ट ऑफ बलोचिस्तान स्पेसिफिकली. तो जब वो किसी गांव में जाती है, लोग देखते हैं कि एक बहुत हसीन खातून है जिनको कभी किसी ने पहले नहीं देखा, उन्हें कोई नहीं जानता गांव में. जब आप उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, तो वो कहती हैं कि मैं किसी और गांव से आई हूँ. एंड देन यू आस्क हर इफ़ शी हैज़ समथिंग टू डू विद द वेदर, एंड शी सेज यस, वेयरएवर आई गो रेन फॉलोज. So basically it's this idea of a beautiful entity being associated to good weather, because wherever she goes मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश हो जाती है. ये तो एंजेलिक सी बात होगी डीमन से, तो ये बहुत ज़्यादा. बट कुछ फैमिलीज़ में ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो खुशी के मौके पे दे टर्न इनटू मॉन्स्टर्स. इसका नाम ना भी होता तो खैर थी, बट अमूमन इसको कज़हबोल कहते हैं. एंड इट्स डिस्क्राइब्ड लाइक अ हाइना, and it always has this urge to kill. So after a night of joy, they will just transform into these creatures and they will go out on a killing spree. ये तो werewolf की similarity है a lot like the werewolves, only that werewolves aren't rishtedar. नहीं, is it But these are. specifically for rishtedars in or some family members या specifically relatives who? relatives. ये तो बड़ी अच्छी चीज़ पख्तून कल्चर में कि उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसको टैग किया हुआ एक बुरे उससे. We have the khapasa. खपसा. Yeah. अगर आप सीधा लेट के सोएं एंड लाइक आप छत को देख रहे हैं एंड यू आर asleep, तो इट विल कम एंड इट विल सिट ऑन योर चेस्ट. स्लीप पैरालिसिस टाइप को एक कंडीशन क्रिएट होगी, and you will have difficulty in breathing. हाँ, ये बहुत सारे कल्चर्स में इसका वो है. बिल्कुल है. And it only has 4 fingers, because if it also had a thumb, it would just choke you. ये हम लोगों ने भी सुनी है. वो होता भी है बचपन में, स्लीप पैरालिसिस आई थिंक ऑलमोस्ट हर बंदे ने एक्सपीरियंस किया होता है, बट इसके डीमंस फ़र्क है हर कल्चर के लिहाज से, हर रीजन के लिहाज से. आई थिंक सिंधी में इसको खपस्त कहते हैं, चित्राली में इसको खबीसी कहते हैं, बलूचिस्तान में इसको गोवान को कहते हैं. उर्दू में इसको खबीस तो नहीं कहते. ये मुझे नहीं पता. Then we also have azdaha, which is for the most part evil. No, not exactly a snake, more like a dragon. अच्छा, हम अजदहा आई थिंक कहते हैं पाइथॉन्स या उसको. हाँ जी. तो it can take both forms. It can also be a snake and it can also be like a dragon of sorts. क्योंकि if you go a little further north or if you come a little down south to Punjab, Nang ya Nihang naam ke aquatic dragons and dragons otherwise, they exist. There is about 9 dragon lakes in Pakistan, and one of them is actually in South Waziristan, if I'm not wrong. These are lakes? Yeah. Aquatic dragons were usually guarding a lake, and nobody could get water from the lake till a hero came by and actually slayed the dragon. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने ये स्टोरीज कभी पाकिस्तान के से एसोसिएटेड नहीं सुनी ड्रैगन्स की. I think dragons came in from Central Asian influences, but not they Chinese just, influence? and again Chinese, Central Asian, and even Hindu influences, because there's also this legend about the Margla Hills and a Naga king who used to rule here. Nagas are again a form of dragons, and this is a Buddhist story. And then Indian culture में dragons का काफ़ी ज़्यादा एक role रहा है, but there's this conflict. Like if you map it out on a map, you can see
where demons are bad and where demons are good. So there is that duality because again in Hinduism and in Chinese tradition, dragons do have like slightly different roles. बाकी एक और demon है शीशा का. It haunts graveyards and उसकी एक interesting बात यह है कि मोमंद में it's a belief कि women who stay unclean for 4 months or more, and men, if you don't pray 5 times a day, the chances are कि you will transform into a shisha ka. So then your eventual fate is कि आप कब्रिस्तान में घूमेंगे रात को and you will haunt the sacred grounds. And अगर कोई आएगा तो शीशे का पीछे से वार करके मारता है. अच्छा, क्लोथिंग के अंदर मेरे एक फ्रेंड है सवाबी से हैं, तो वो एक चीज़ मुझे बता रहा था, कहता है अगर आप उस एरिया में जाओ तो ख़वातीन, बहुत सी ख़वातीन आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इस ट्राइब की हैं बाय दी चादर्स दैट दे वेयर. उस पर कहता है रेड ब्लॉचेस होते हैं, कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं खून के धब्बे. एक ज़माने में, अब आई नॉट फेमिलियर विद द नेम और द स्टोरी, कि एक ज़माने में उनकी पूरी ट्राइब मार दी गई थी और उन्होंने अपनी चादरें अपने डेड के ऊपर रखी थी एंड दे वर कवर्ड विद रेड ब्लॉचेस ऑफ ब्लड. तो वो आज भी उसको करती हैं. इसकी क्या स्टोरी है और इसके बारे में क्या हिस्ट्री है इसकी? इस चादर को चेल कहा जाता है एंड इसकी बहुत सी आपको वेरिएशंस भी मिलती हैं. द सेम डिज़ाइन इज़ ऑल्सो वर्न अमंगस्ट द हिंदको स्पीकर्स, ये एबटाबाद साइड वगैरह में. लेकिन यहाँ पे इट्स पिंक विद ग्रीन डॉट्स. तो दिस इज़ समथिंग आई हैव बीन रियली ट्राइंग टू लुक इनटू बट मुझे नहीं मिल रहा था. And क्योंकि again पर्दा was a very strict thing, so there is only one British woman who came and photographed an elite family जिसमें one of the subjects was wearing this chadar. I've been trying to find out the history कि ये color variations क्यों हैं, and even in Swat there are other tribes which don't wear the white and the white chadar with red spots, but there's like dark blue with light blue spots, and there's also white and green, like a very light green. So this is something which is currently work in progress for me. अच्छा, कल्चर के ऊपर हमने सारी बातें की, थोड़ी थोड़ी फोक टेल्स के ऊपर भी, डीमंस के ऊपर भी, फूड, क्लोथिंग. पख्तून आर्ट कैसी होती है? पख्तून पेंटिंग्स हो, आर्ट हो, स्कल्पचर्स, आई डोंट नो, क्योंकि काफ़ी अरसे से इस्लाम से इन्फ्लुएंस्ड है तो इस्लाम में मूर्ति वगैरह कम होती है. प्रिजर्व हुई है आर्ट इनकी कि नहीं? लिटरेचर भी है, उस पर भी बात करते हैं. विजडम तो पख्तून विजडम के ऊपर हम प्रॉवर्ब्स वगैरह भी देख सकते हैं. इनकी आर्ट का के ऊपर आप हमें क्या बता सकते हैं? अच्छा, so I think a lot of the art is actually seen in woodwork. Woodwork का काफ़ी ज़्यादा concept रहा है. B, you see it in embroidery because every tribe often had its own specific type of embroidery. One art which is actually dying out, ये पेशावर के जो अंदरून पेशावर में जो traditionally हिंदकोवान्स रहा करते थे, they used to practice this art. वो एक दरख्त होता है, उस दरख्त से वैक्स निकलती है, तो वो नेचुरल वैक्स निकाल के they used to make patterns out of it and then it used to be brushed with colored dyes and the colors used were very bright. अब आके metallic colors भी आ गए हैं like golden and silver, but traditionally it used to be like bright blues, उससे बनता क्या था bright इस wax reds, से? bright yellows. कपड़े के ऊपर wax से pattern बनाया जाता था and also the patterns itself, they were very focused on flowers primarily. And another very important symbol is the peacock, which is animal based imagery थोड़ी कम नज़र आती है हमारे इलाकों में, but the peacock, beautiful peacocks, honestly. I saw some of them and it's usually done on silk to give it like an extra shine. अच्छा, पेंटिंग्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट इतना प्रेवलेंट है इस कल्चर में? I think folk art की अगर आप बात करें ना तो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट जनरली कम है. Because painting was not really developed as a folk traditional art, because folk arts are the ones which have been passed down probably since before paper even existed. It's a very good conversation we had. I learned a lot more about KP than I thought I had to know, and it was a fun conversation for me. I think we should end with a proverb or two that you like about the Pashtun culture, or Pashtun proverb here.
So, do you have any in mind? The first one is that no proverb is ever a lie. This is an actual proverb. Of Pashtun, that's a Yeah. thinker. So you have that right there. The second one, which is a little funny, जो मुझे अपनी छोटी बहन और कज़न्स को देख के अक्सर जहन में आता है कि बच्चों से शैतान ने भी पनाह मांगी है. That's a sweet thing. बाकी there's another one which says कि अगर आप में 100 आते हैं ना तो एक आपकी माँ से ज़रूर आई होगी. So again, I think that one goes back to the one no proverb is ever a lie. Yep. Certainly not a lie. And बाकी there's one other proverb which says कि जो खातून होती है वो घर का चिराग होती है. So she lights up the whole home and she keeps it warm and I think happiness and इस बारे everything. में कोई शक भी नहीं है. It's a beautiful thing that they have confined in a proverb. So Pashtun And I culture has. think one more which is very important क्योंकि I think आजकल हम ज़रा struggle कर रहे हैं with gender equality and how women are discriminated against. Traditionally, when a son was born, people used to celebrate because he used to be compared to like an arm for his parents. But when a daughter was born, she was actually believed to be like a source of shade and comfort for her parents. And I think if we remember all of this today, I think it would make a lot of things easy for us. There's no doubt about it. ये तो इस्लाम में भी है कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं. I think हम लोग बहुत ही सुपरफिशियली या बहुत ही इग्नोरेंस के साथ रह रहे हैं पश्तून कल्चर के साथ और पश्तून लोगों के साथ. There's a lot more wisdom than we could ever imagine जो कि इनके लोगों में है, इन लोगों में है, पाकिस्तान की हमारे भाइयों में और हर कल्चर के अंदर होता है. But we need to explore each other a lot more. And Pashtun wisdom I have found to be very deep. जो proverb मुझे बड़ा पसंद है पख्तून कल्चर का वो है you can't do anything by doing nothing. तो I think it speaks to their mentality, their philosophy. और हम लोग जहाँ भी देखते हैं किसी भी मतलब किसी भी एज ग्रुप में भी आप चले जाए ना so पख्तून people are looked at as very मेहनती लोग. And I think this proverb confines it and portrays them. उनकी mentality show करता है कैसी है. And I think since you've mentioned hard work, if you're someone who's very busy all the time and जिस तरह उर्दू में कहते हैं ना ईद का चांद हो गए हो when you don't have time for your friends or your family and you stay absent. So there's a Pashto proverb for it which basically calls you a fig flower. There's also some mythology associated to it कि जिसको फिग फ्लावर नज़र आ जाए वो बंदा बहुत खुशकिस्मत हो जाता है and उसकी किस्मत खुल जाएगी and everything. But yeah, like, well, science says figs don't have flowers. But this is a proverb common to Pashto and Balochi both. So regardless of how hard you're working, you're still expected to show up for your family, be there for your friends. Both of these sort of just go hand in hand. I think that was a great note to end on. I hope you learned something new just like I did. और अगर आपके कोई अपने opinions हैं that you want to add to this conversation, please put them down in the comments and we'll meet again next week. Thank you.